हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और आसान हमने रखा था। सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए? यू नो, आई हैव specifically for today's question, what I have done is I have written full answer, full length answer. Okay, just to tell you how can we incorporate everything that we can think of. Like for example, in this question there are many things which could have been incorporated. We cannot incorporate everything, but still, how can we sum up everything in the given time limit or word limit? Okay, so just to give you one example, I have written full-fledged answer today. Okay, I'm not going to give you keyword for today's answer specifically, but this is a full-fledged answer just for today's question. Okay, and also I observed that some people are not very clear with the idea of open and closed system. Okay, जनरली हम ये मानते हैं, कुछ लोग के इस आंसर जब मैंने पढ़े देखे तो मुझे पता चला कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ओपन सिस्टम में हायरार्की नहीं होती, क्लोज सिस्टम में हायरार्की होती है। और लुई डुमो का एग्जांपल वो डालते हैं इस चीज़ को कोट करने के लिए कि होमो हायरार्किकस और होमो इक्वालिस। होमो इक्वालिस वो बोलते हैं यूरोपियन सोसाइटी को, जैसे लुई डुमो, और होमो हायरार्किकस इंडियन सोसाइटी को बोला जाता है। एज इफ यूरोपियन सोसाइटी में कोई हायरार्की नहीं है, राइट? ओके, now the fact is open system also has hierarchy. How come? भाई सीधा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ओपन सिस्टम होता क्या है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। आज की डेट में इफ यू आर बिकमिंग IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, इज इट बिकॉज ऑफ योर कास्ट और इज इट बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल टैलेंट और एबिलिटी? It's not because of your caste, but there was a point of time when we used to have administrator during the regime of Mauryan or Harsha Empire. Those administrators came from specific caste, but today administrators are not coming from caste groups. They are coming into those positions only because of their individual merit or capacity through competitive examination conducted by UPSC in a rigorous fashion, right? So that way system is open or closed. हमारा इंडियन सिस्टम इज वेरी मच ओपन बिकॉज इट इज ओपन टू एवरीवन. एनीबडी कैन राइट UPSC irrespective of their caste, class, color, sex, breed, ethnicity, whatever it is. Okay, it doesn't matter. Even sexuality, कुछ भी sexuality को आप open system है. Closed system on the other hand is not open. Generally हम ये consider करते हैं. So let us quickly start with the answer itself. And how do we approach such question whenever you confront a question like what do you understand by A and B? The ideal approach should be to draw a table right at the beginning of the answer. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, जो भी आपको लिखना है टेबलर फॉर्मेट में लिख दो. इनफैक्ट डेफिनेशन की भी बात करनी है. वी सी, लेट मी फर्स्ट encircle the keywords open and closed system and how mobility operates. बेसिकली हमने क्या देखना था? मोबिलिटी इन बोथ ओपन एंड क्लोज. डू वी हैव एब्सोल्यूट मोबिलिटी इन ओपन सिस्टम और डू वी हैव क्लोज्ड सिस्टम इन द सेंस वी डू नॉट हैव मोबिलिटी एट ऑल इन द क्लोज सिस्टम? Is it so? We had to explain the dynamics of mobility in both open and closed system. Now open system, how do we define open system? It is a system in which the hierarchy is present. Definitely it is present, but the hierarchy is legitimized on the grounds of universal achievement, meritocratic and quantitative principles. Okay, and quantitative principles. इसका मतलब IAS, IPS, IRS, पोस्टल सर्विस, दानिश तक जो भी रैंक भरी जा रही है, दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल. जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको IAS मिल गया या अपनी चॉइस मिल गई, चाहे वो IPS की हो या IRS की हो. ठीक है. सो whosoever is given position that is based on यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन. ऐसा नहीं है कि लोकसभा की स्पीकर की बेटी को अलग कोई रास्ता दिया गया है एंट्री का, नहीं. यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर एवरीवन. अचीवमेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. Whosoever achieve
system is open to everyone. Whosoever is able to achieve shall be given that position. Meritocratic principles, whosoever attains rank shall be given that position. The rank is assigned on quantitative principles. Whosoever scores shall be given that particular rank and accordingly that position. So open system, right? On the other hand, closed system is a system in which उधर भी हायरार्की तो है, बट हायरार्की डेवलप कैसे होती है? द डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन somehow tend to assume hierarchy. We both are only different. Men and women are only different. In terms of gender, we are different. Similarly, white and black, they are only different. Brahmins and Dalits, they are only different. Caste group, racial group, and state or gender, all these which are different from one another, they assume hierarchy. They are hierarchized. They are hierarchized. Without any objective criteria, there is no quantitative criteria in hierarchizing Brahmin over Dalits. There is no meritocratic ground for hierarchizing Brahmin over Dalits. Okay, it is only because of the power structure. Whosoever is operating in the power structure, accordingly, the dynamics of the society shall be driven. Okay, accordingly, the dynamics will evolve in the society. So the closed system is a system in which differences based on race, caste, state and gender are hierarchized without objective criteria. Simple. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था, राइट? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोई क्राइटेरिया नहीं है रैंक एलोकेशन में, राइट? मैन को हम ऊपर रखते हैं वुमेन से, जेंडर इनइक्वालिटी की बात की जाती है, सेक्सिज्म की हम बात करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है? क्वांटिटेटिव, मेरिटोक्रेटिक, यूनिवर्सल? नो, बस एक बायसनेस है, प्रेजुडिस है. ये डिफरेंसेस समहाउ हायरार्की अज्यूम कर लेते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ दीपांकर गुप्ता. सो जब मैंने ये किया, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ डिफरेंस नहीं बताया ओपन और क्लोज सिस्टम, मैंने डिफाइन भी कर दिया साथ के साथ. सो द डेफिनेशन ऑफ द ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑटोमेटिकली रिवील द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ second point should be to give one example each for both open system and closed system. Since open system में everything is based on your merit, talent, individual ability, तो that way एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्लास बेस्ड. क्योंकि क्लास जो होती है, लोअर क्लास से आप मिडिल क्लास पहुंच सकते हो अपने टैलेंट पे, अपनी एबिलिटी पे. मिडिल से अपर पहुंच सकते हो अपनी टैलेंट एबिलिटी पे. स्टार्टअप लॉन्च किया, लोअर से आप सीधा अपर पहुंच गए स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के बाद, जैसे पेटीएम का फाउंडर. ओके, कहां से शुरू किया, कहां पहुंच गया. ओके, अंबानी को देखो, धीरू भाई अंबानी कहाँ थे? वो भी कोई रिलेटिवली गरीब नहीं थे, बट स्टिल आज जहां पे अंबानी है, मुकेश अंबानी, उसके कंपैरिजन में धीरू भाई अंबानी तो कहीं स्टैंड नहीं करे थे, राइट? सो ओपन सिस्टम है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट. सो एग्जाम्पल क्या होगा? क्लास. बट एग्जाम्पल फॉर closed system can be anything. Let us for our convenience take one example, that is caste. ओके, तो हमने दो काम किए. हमने क्या काम किया? पहले हमने डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में एग्जाम्पल दे दिया डेफिनेशन के साथ ही. यानी 2 स्टेप कवर, 2 steps covered. Okay, let us try to see what has to be done in the third step. क्योंकि क्वेश्चन में हमारी डिमांड थी ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से आप क्या समझते हैं, वो हमने बता दिया पहले 2 स्टेप में एग्जांपल के साथ. अगला डिमांड था हाउ मोबिलिटी ऑपरेट इन बोथ द सिस्टम. अब ये बताते हैं. चलो मोबिलिटी को लेकर बात करते हैं. इन द ओपन सिस्टम डू वी हैव मोबिलिटी? आप आईएएस ऑफिसर बन गए अपने बलबूते पे, टैलेंट पे, स्किल पे, एबिलिटी, जो भी कह लो. एसडीएम की पोजीशन आपको मिली या डीएम की पोजीशन आपको मिली, किसी भी एग्जाम के थ्रू आप गए, यूपी पीसीएस के थ्रू, यूपीएससी, जो भी है. एसडीएम से आप डीएम बने, उसके बाद फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए कर करके आप फाइनली फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे पहुंचे. क्या ये मोबिलिटी नहीं थी? थी. किसकी थी? इंडिविजुअल की थी या पूरे जितने एसडीएम थे वो सब के सब कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहे हैं? नहीं, पूरा एक पिरामिड है ना. कैबिनेट सेक्रेटरी एक लास्ट पोजीशन है, एपिटॉम है ब्यूरोक्रेसी का.
और ये ऐसे ओपन होता है, नीचे कितने सारे एसडीएम होते हैं आखिर में, फिर ऊपर पहुंच पहुंच के धीरे धीरे कट होते रहते हैं, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी एक। तो ये इंडिविजुअल मेरिट पे पहुंचे, आप सीनियरिटी लेवल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि मोबिलिटी इज एन एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ हायरार्की तो थी, बट मोबिलिटी भी थी। बट मोबिलिटी किसकी? इंडिविजुअल की, पूरे ग्रुप की नहीं। एसडीएम सारे के सारे कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, ये नहीं होता। एक इंडिविजुअल कई एसडीएमओ में से ऊपर जा जाके एक दिन फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। वो कौन होता है? अगर पहले आए हैं, बहुत ही पहले आए हैं, एज जो आपकी एंट्री की जो एज थी वो बहुत छोटी थी, 20 के एज में आप एंटर करके बनोगे कैबिनेट सेक्रेटरी, 21 में बन गए, बनोगे कैबिनेट 22 तक भी बन जाओगे। ओके, सो इंडिविजुअल मोबिलिटी हुई, ग्रुप मोबिलिटी की हमने बात नहीं करी। अब देखते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्योंकि क्लोज सिस्टम में डिफरेंसेस हायरार्की अज्यूम करते हैं, डिफरेंसेस नॉट अमंग इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, जेंडर ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, स्टेट ग्रुप्स। क्योंकि डिफरेंसेस को हमने पॉपुलर कॉन्शियस के वजह से विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमने हायरार्काइज किया है। तो मोबिलिटी यहां पे इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकती। मैन और वुमेन के कंपैरिजन में जेंडर इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, वुमेन आर प्लेस्ड जनरली लोअर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मैन। So individual mobility is not the case here. Here it is the group mobility that is going to happen. Since one whole group is inferiorly placed in comparison to the superior group, so that inferior group would automatically advance an ideological movement or wage a war against the superior position in terms of social movement. For example, women would wage a war against the men in terms of feminist waves. Dalits would wage a war against the Brahmins in terms of Dalit movement, anti-Brahminical movements, self-respect movement. Okay. Blacks would wage a war against the whites in terms of civil rights movement. तो यानी कि जब ग्रुप्स जो डिफरेंसेस के बेस पे हायरार्की अज्यूम करते हैं, टैलेंट के बेस पे नहीं, वो जब उनको ऊपर जाना हो, मोबिलिटी अचीव करनी हो, तो वहां इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो पाएगा, ग्रुप को ही कुछ करना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को एक मोबिलिटी के लिए कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो देयरफॉर आई हैव रिटन सिंस हायरार्की इज फोर्स्ड ऑन डिफरेंसेस, it cannot be countered by individual mobility, and therefore we have group mobility. For example, Sanskritization was a group mobility, feminism group mobility, civil rights movement group mobility. Okay, one representing mobility of caste group, second representing mobility of gender group, that is women, third representing mobility of blacks, racial group. Let us now come to the next aspect. Okay, class hierarchies are variable sum game. What do we mean by this? इसको समझने के लिए यहां चलते हैं। स्टेटस हायरार्कीज, क्योंकि कास्ट से आपको स्टेटस मिलता है, ठीक है, जनरली हम बोलते हैं स्टेटस, कास्ट, क्लास, पावर। ओके, तीन टाइप के स्ट्रेटास होते हैं जिसकी बात मैक्स वेबर करता है, स्टेटस, क्लास एंड पावर। इंडिया के केस में स्टेटस इज रिप्रेजेंटेड बाय कास्ट। ओके, सो स्टेटस हायरार्कीज आर जीरो सम गेम। इसका मीनिंग क्या होता है जीरो सम गेम का मीनिंग? दिस लाइन वाज गिवन बाय मूरे मिलनर। ओके, मूरे मिलनर, स्टेटस हायरार्की या जीरो सम गेम। इसका मीनिंग क्या है? जब ग्रुप मोबिलिटी हो रही है, दलित्स ने जब वॉर वेज किया इन द टर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, तो फिर क्या हुआ? जब नीचे वाले ऊपर वालों के अगेंस्ट ग्रुप में मोबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट देम, एन आइडियोलॉजिकल वॉर, सो द मोबिलिटी ऑफ दिस डाउनवर्ड पीपल, द अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ दिस डाउनवर्ड पीपल would be achieved at the cost of displacement of those people who are superiorly placed at the uppermost positions. इसका मतलब कि जब नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो ऊपर वालों की पोजीशन की कॉस्ट पे नीचे वालों की मोबिलिटी हो रही है। यानी जब दलित आए ऊपर तो ब्राह्मण्स का स्टेटस डिमिनिश हुआ,
Okay, that is why I have written upward mobility necessarily displays superior position of other groups. For example, Brahmins undergoes status diminution. Status diminution. ओके, कंफ्लिक्ट होएगा, कंफ्लिक्ट होएगा जब नीचे के ग्रुप्स ऊपर वालों के अगेंस्ट मोबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ दोज पीपल हु वर लोकेटेड एट द अपर मोस्ट सेक्शन. इसका मतलब दलित ऊपर है तो ब्राह्मण्स का स्टेटस अब नीचे हो गया. तो जीरो सम गेम हुआ कि नहीं? ब्राह्मण्स ऊपर थे, दलित नीचे थे. दलित ऊपर है तो ब्राह्मण्स ऑटोमेटिकली अब नीचे हो गए उनके कंपैरिजन में. जीरो सम गेम. ओके, क्योंकि एक तलवार में दो म्यान नहीं रहती, ऐसा समथिंग लाइक दिस जो भी होता है. ठीक है, ओके. बट क्लास हायरार्की आर नॉट जीरो सम गेम, विच मीन्स अगर आप एसडीएम से डीएम बनते हो तो दैट इज नॉट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन हु वाज ऑलरेडी डीएम. नो, ये इंडिविजुअल मोबिलिटी वेरिएबल सम गेम है. You add on to the already existing position without causing any harm to the superior position that is available above SDM. तो आप SDM बने, SDM से आप DM बने, तो जो ऑलरेडी DM है उनका स्टेटस नीचे नहीं हुआ, वो वहीं रहे. आपका स्टेटस उल्टा बढ़ गया. लेकिन यहाँ के केस में ऊपर वालों का स्टेटस कम हो गया क्योंकि नीचे वाले अब ऊपर आ गए हैं. जीरो सम गेम है, यहाँ पे जीरो सम गेम नहीं है. ओके. So upward mobility does not displace anyone in the open system. Simple? Very simple. Okay. However, as I told you, however बड़ा important word है, इसको रट्टा मार लो. किसी और को मत रट्टा मारो, however word को रट्टा मार लो बस. ठीक है? क्यों इसको रट्टा मारना मैं बताता हूं. However जो है वो गेम बदलता है. However से However से क्या होता है, आपके आंसर में एक शिफ्ट आता है. आप मजबूर हो जाते हो जो भी आपने लिखा है उससे कुछ ऑपोजिट साइड लिखने का या दूसरा साइड दिखाने का. ये आपको फोर्स करता है कुछ अब अलग लिखने का. हाउएवर का यही मतलब होता है, हालांकि. ठीक है, हाउएवर. नीदर क्लास इजंट ओपन, नीदर क्लास इज एन एब्सोल्युटली यहां ओपन लिख देता हूं मैं. नीदर क्लास isn't नहीं, ये is होएगा. Neither class is absolutely open system nor caste is absolutely closed. Okay, neither class is absolutely open system nor caste is absolutely closed. हमने ऊपर ये क्या दिखाने की कोशिश की थी? क्लोज सिस्टम में हमने एग्जांपल दिया था कास्ट का और ओपन में हमने दिया था क्लास का. लेकिन हाउएवर करके हम बता रहे कि ये डज नॉट मीन कि क्लास एब्सोल्युटली ओपन होता है, ना ही इट मीन्स दैट कास्ट इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड. और इसका एग्जांपल मैंने साथ साथ दिया है. क्लास इज नीदर क्लास इज एब्सोल्युटली ओपन, यानी कि क्लास ओपन नहीं है एब्सोल्युटली. कैसे नहीं है? एग्जांपल, ग्लास की स्टडी हुई थी यूके में. आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आप जरूर रेफर करना. बहुत पुरानी स्टडी है, 1952 की. दिखाता है कि लिमिटेड मोबिलिटी हो पाती है. एक लोअर क्लास से आदमी एक अपर लोअर तक या मिडिल तक जा रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है. एब्सोल्यूट ओपन नहीं है वो, दैट वे क्लास सिस्टम. ओके. सिमिलरली गोल्डथॉर्प की स्टडी थी ऑफ एफ्लुएंट वर्कर्स 1963 की. सिमिलरली एक और स्टडी मैं आपको यहां बताता हूं, लॉकवुड की स्टडी है. किसकी? ब्लैक कोटेड वर्कर्स. ब्लैक कोटेड वर्कर्स. ओके, ये सारी स्टडीज दिखाई गई थी, कंडक्ट हुई थी यूके में. अमेरिका कई जगह हुई हैं, यूके की है मेनली स्टडी. थॉमस लॉकवुड की और गोल्डथॉर्प की, ग्लास की यूके की स्टडी है मेनली. ऑक्सफोर्ड मोबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं कुछ को. ये दिखाने की कोशिश थी कि लिमिटेड मोबिलिटी है, एब्सोल्यूट मोबिलिटी नहीं होती. क्लास को बड़ा ओपन दिखाया जाता है, बट कुछ हद तक ही आप ऊपर या कुछ हद तक ही नीचे जा पाते, एकदम नीचे या एकदम ऊपर नहीं हो पाते. ओके. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक थ्रेशहोल्ड लिमिट है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाते. जैसे आप अर्थ को एक पॉइंट के बाद डिग नहीं कर पाओगे, एक पॉइंट आएगा उसके आगे डिगिंग रुक जाएगी, वैसे ही क्लास में भी एक पॉइंट तक आप एलिवेट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे. ओके. सिमिलरली कास्ट इज नॉट एब्सोल्युटली क्लोज्ड. एग्जाम्पल, कॉलोनियलिज्म. सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कॉलोनियलिज्म ने क्या किया था? लैंड को मार्केटेबल कमोडिटी बना दिया. और जब when land became marketable commodity, that means जजमानी relations automatically withered away.
कुछ कास्ट ग्रुप्स की अपनी पहचान लैंड से आती थी, जब वो लैंड मार्केटेबल बन गया तो कास्ट की आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो कॉलोनियलिज्म से क्या हुआ, अनइंटेंशनली वो जो सिस्टम था कास्ट का एकदम क्लोज, जिसने होल्ड कर रखा था लैंड को अपने पास एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप में, वो खत्म हो गया सिस्टम, मोबिलिटी हुई, राइट। लैंड रिफॉर्म सिस्टम से, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ, मोबिलिटी, सबके पास लैंड चले गया, यानी कि अब कोई एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के पास कोई कन्फाइंड नहीं है लैंड, सुपीरियर पोजीशन की जो बात होती है लैंड की, वो खत्म हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेंस्क्रिटाइजेशन, ये सभी ने लिखा होगा, मुझे पता है सभी ने लिखा होगा। सेंसस, सेंसस कैसे हमें दिखाता है कि कास्ट इज नॉट एब्सोल्युटली क्लोज। एम एन श्रीनिवास बोलते हैं, सेंसस इन्यूमरेटर आपके घर आया, आपने बोला मैं क्षत्रिय हूं, सॉरी वैश्य हूं, अगले साल वो फिर आया 10 साल बाद, ठीक है, आपने बोला मैं पहले आपने बोलता मैं वैश्य हूं, अब आपने बोला मैं क्षत्रिय हूं। अब अरे वेरीफाई कहां से करेगा, आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस, द वे यू टॉक, जो रिचुअल्स आप कंडक्ट करते हो, इन्हीं सब से तो हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट करते हैं दैट यू आर क्षत्रिय और शूद्र और ब्राह्मण। तो उसने वो जो लाइफस्टाइल है उनका एमुलेट कर लिया क्षत्रिय लोग और बोल दिया मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी एक मोबिलिटी का एक तरीका है। दिस इज व्हाट एम एन श्रीनिवास ऑब्जर्व्ड कि सेंसस इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मोबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन क्या होता है, इसकी बड़ी अच्छी स्टडी है, श्यामलाल करके एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसको शुद्राइजेशन बोलते हैं। शुद्राइजेशन बताते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर, राजस्थान की स्टडी है, उन्होंने दलित के लाइफस्टाइल को एमुलेट करने की कोशिश करी सो दैट दे कुड टेक बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। So they wanted to present themselves as Dalits so that they could take or avail the benefit of SC community reservation given to the SC communities. ये भी एक तरीका, अपने आप को पहले नीचे गए, नीचे अपने आप को नीचे का दिखाया ताकि ऊपर जा पाओ, जैसे वो स्प्रिंग बोर्ड नहीं होता, तो कास्ट सिस्टम, reservation system had become a springboard to those people. Okay, next is secularization thesis, migration, and finally सन्यासी का स्टेटस। See, लुई डुमो ने भी खुद कहा था, हालांकि होमो हायरार्किकस है, लुई डुमो ने कहा था, इसको ध्यान रखना, although Indian society is homo hierarchicus in the language of Louis Dumas, however it does not mean that there is no mobility. Louis Dumas clearly exclaimed that individual mobility can still happen, although group mobility is not possible, group mobility of caste is not possible, but individual mobility of caste is possible. How else would you explain an individual who belongs to Shudra community, when he attains sannyasi status, that automatically grants him a brahmanical status? Okay, जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि he belonged to Shudra community, but सन्यासी बन के ब्राह्मणिकल स्टेटस आ गया। उसी तरह बुद्धा क्षत्रिय वर्ण के थे, बट ब्राह्मणिकल स्टेटस उन्होंने अचीव कर लिया, निर्वाण प्राप्ति करी। ओके, तो ये शो करता है सन्यासी बनने पे एलिवेट होता है आपका कास्ट। ओके, सो दीज एग्जांपल्स शो दैट कास्ट इज नॉट एब्सोल्युटली क्लोज्ड। Also, what else can be done here? Okay, I thought कि ये क्वेश्चन आपको ढंग से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कुछ लोग के बड़े ही डाउट रहते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज किस बेसिस पे हम क्लोज बोलते हैं, किस बेसिस पे हम ओपन बोलते हैं, ये बड़ा डाउट रहता है कई स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का, लेकिन फिर भी मुझे लगा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में मैं डील करूं। ओके, तो अब फाइनली मैंने क्या किया, recently last year he in fact global social mobility report रिलीज हुई। किसने रिलीज करी? इट वॉज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। इंडिया का रैंक क्या है? आउट ऑफ 82 कंट्रीज इंडिया का रैंक क्या है? 76। So India got 76 out of 82. Okay, very good score. So India का रैंक 76 है आउट ऑफ 82 कंट्रीज। ये क्यों है? दिस रिपोर्ट बेसिकली हाईलाइटेड दैट इंडिया में एब्सोल्यूट मोबिलिटी तो है, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है सब, ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, हाउएवर रिलेटिव मोबिलिटी इज वेरी लो, So this report highlighted that India's relative social mobility remains low despite high level of absolute income mobility. This is where we can work. Okay, and this is how we can easily conclude our answer. जहां तक बात है
नो सोसाइटी इज एब्सोल्युटली क्लोज ओपन सिस्टम, या फिर नो सोसाइटी एब्सोल्युटली ओपन, नो सोसाइटी एब्सोल्युटली क्लोज। ये इसको भी कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हो, कईयों ने लिखा भी होगा आई एम श्योर, बट उसको मैंने एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया कि कैसे नहीं है। ओके, कंक्लूड करने के लिए मैंने कुछ कंटेम्प्रेरी भी डाल दिया। ओके, शायद कुछ लोगों ने ना किया हो, बट आप ये कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ वी कैन ऐड समथिंग कंटेम्प्रेरी टू अवर आंसर्स, टू दोज आंसर स्पेसिफिकली जहां पे हमें लगता है कुछ कंटेम्प्रेरी कैसे ऐड करें। ये जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, हाउ कैन यू यूज इवन द रिपोर्ट्स दैट यू आर रीडिंग फॉर प्रीलिम्स। इंडेक्सेस हम बड़ा प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स बड़ा प्रिपेयर करते हैं, वो रिपोर्ट और इंडेक्सेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं आंसर में। ये वो बस मैं चाहता था कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आज दिखाऊं, तो इसलिए मैंने फुल फ्लेजेड आंसर लिखा है आज। ओके, हालांकि मुझे पता है मैंने 150 को एक्सीड किया है, बट इसीलिए क्या, ताकि मैं आपको पूरा एक डेमो दे सकूं। खुद आंसर में लिखूंगा तो 150 वर्ड एक्सीड नहीं होंगे, ना ही शायद मैं एक पेज से ज्यादा भी एक्सीड ना करूं, एक ही पेज में लिख दूं मैं। ओके, क्योंकि पेजेस डजंट मैटर, पेज कितने आप भरते हो इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपका कंटेंट क्या है। ओके, एनीवे, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज आंसर। नाउ let me discuss some important things for the upcoming mini test that is scheduled for tomorrow. देखो, मिनी टेस्ट जो है हमारा, इन द tomorrow's mini test, what is going to happen is that you will be given 9 questions. 9 questions, okay, and all the 9 questions will be compulsory. That means you will not be given even one single choice. All of you would have to attempt those 9 questions. All the 9 questions would be compulsory, just to create a level playing field. Okay, this is just an experiment. We want to do this because since we are conducting mini test for the first time, the damn session, in fact the program has been conducted for the first time. So mini test उसमें अलग से हम first time कर रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं। ओके, सो देखने के पर्पज से अभी इस मिनी टेस्ट के लिए हम सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी रखना चाहते हैं। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस क्या है डैम्प का? द पर्पस ऑफ डैम्प is a threefold basically. First and foremost, to make sure that people, whosoever is not ready with the content, they prepare as fast as possible in as precise manner as possible so that he is able to write the content the next day. Okay, तो जो चीज आप एक हफ्ता लगा के पढ़ते हो, कल का शेड्यूल देखकर आपको पता चलता है कि इस पे टेस्ट है, फटाफट आप पूरी कोशिश करते हो मैं फटाफट लो के साथ साथ चलूं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एक आपको मिलता है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पुश करता है। जिस दिन आपका स्कोर अच्छा आता है वो और ज्यादा पुश करता है आपको कि नहीं यार, अब तो भाई फटाफट पढ़ना है, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, यानी इतना प्रिपरेशन मेरा काफी है, इतना ज्यादा और पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। जब मेरे इतने प्रिपरेशन में इतना मार्क्स आ रहा है, बाकी डिस्कशन भी मैं देख रहा हूं, तो फिर मुझे कंटेंट और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पर्पस खत्म। सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, टू मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट का मतलब क्या है? वी विल गिव यू एक्सपोजर टू, और वी विल एक्सपोज यू to multiple kind of questions that may not be very direct, and to be very honest, tomorrow's question is not going to be direct one, it will be one of the toughest paper. Okay, one of the toughest paper. Intentionally it is designed to make sure that all the students, whatever kind of preparation they have done, or जितना भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी उन्होंने पढ़ा है, in order to create a level playing field, we thought, why not give them some questions based on applications? How well are you able to apply theories to something which seems very application oriented? This is something that we want to test. And are you able to do that, third point, in the given time? हमने इतने सारे डेली आंसर राइटिंग किए हैं, इतने क्वेश्चंस हमने किए हैं रोज के। क्या आप लोग एक टाइम लिमिट लेकर चल रहे हो? आर यू गाइज स्टिकिंग टू द टाइम लिमिट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन,
Are you not exceeding 8 minutes? Ask yourself, are you not exceeding 8 minutes? For a 20 mark question, are you not exceeding 12 minutes? If yes, if you are exceeding 12 minutes or 8 minutes, see, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि 8 स्ट्रिक्टली या 12 स्ट्रिक्टली, बट स्ट्रिक्ट अगर रहेंगे अभी से, तभी जाके हम एक उस होल्ड में आ पाएंगे आंसर राइटिंग की, क्योंकि इसी गिवन टाइम लिमिट के अंदर आप अपना 3 घंटे में पेपर कर सकते हो 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 28, तभी आप कर पाओगे अगर आप इस टाइम लिमिट के साथ चलो. ओके, यू मे इवन एंड अप सेविंग फ्यू मिनट्स टू गो थ्रू वट एवर यू हैव रिटन, अगर आप इस लिमिट के साथ स्टिक करते हो. बट इफ यू आर नॉट स्टिकिंग टू द टाइम लिमिट, this is something that you have to ensure at least in the mini test now. Since now we assume that after having gone through one question each on units, although that is very low, I know, that is very less to check someone's performance or conceptual clarity. That is why we have designed mini test, because the larger idea is to ensure that you are able to write the content in the given word limit and time limit. Okay, so कल के टेस्ट में अगर इफ यू आर एक्सीडिंग मोर देन 1.5 आवर, जो कि हमने टाइम स्टिपुलेट किया है मिनी टेस्ट के लिए, यू विल बी गिवन 1.5 आवर. इन 1.5 आवर यू विल हैव टू सॉल्व 9 कंपल्सरी क्वेश्चंस विदाउट एनी चॉइस. ओके, जहां तक सबमिशन की बात है, इसके लिए सारा आपको डिटेल पोर्टल पे आपको दिख जाएगा, कब तक सबमिशन है कब तक नहीं, ये आपको दिख जाएगा. ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव वन मोर जूम सेशन, जहाँ पे मैं ज़्यादा आई थिंक दैट आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गाइड यू एंड पर्सनली गिव यू एनी फीडबैक इन रिलेशन टू योर परफॉर्मेंस. सो इसीलिए मिनी टेस्ट में प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टिक टू द टाइम लिमिट ऑफ 1.5 आवर. इफ इन केस you are not able to do so, at least record the time, that the amount of time that you have exceeded. Okay, the extra time that you have taken to write the answer, at least you should have a record of that extra time. ठीक है, ताकि ग्रेजुअली आपको रियलाइज हो कि ये बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, बात है आप कंटेंट को लिखने में कितने प्रिसाइज हो. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट I'm looking forward to the next Zoom session as well. So I really want to get in touch with you guys as soon as possible. So I'm waiting for you to submit your mini test as soon as possible within a day itself or at max another day. टाइम क्या होएगा वो आपको दिख जाएगा पोर्टल पे. जहाँ तक यस, होमवर्क क्वेश्चन रह गए हैं, काफ़ी रह गए हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं आई थिंक. सो आई थिंक मिनी टेस्ट से पहले ही, मिनी टेस्ट के सेशन से पहले ही मैं एक होमवर्क सेशन के लिए स्पेसिफिकली एक होमवर्क क्वेश्चंस के लिए एक सेशन बना दूंगा, जिसमें जितने भी पेंडिंग है होमवर्क क्वेश्चन, आई थिंक मैक्सिमम 3 या 4 होंगे, वो सब पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मिनी टेस्ट आई विल बी डिस्कसिंग. ओके, सो थैंक यू.